to Saigal to speak to us. In this room full of people like this, sometimes when I was sitting over here and looking, it occurs to me, if there was nobody else, only the people in this room, if we decided we were going to save the tiger, there is enough power in this room to save the tiger. And just imagine, we are living in the shadow of the most beautiful creature in the world, as far as I'm concerned. I cannot imagine a world without tigers. I cannot imagine a breath without tigers. And we are here today because, Kamal, you are in love. I know that. It shows not just, seriously in love with the tiger. The thing is that it's one thing to appreciate. It's another thing to go out and take the trouble to be there in the wild with the wild tiger. And the thing now is that while everybody thinks the tiger needs a danda, a lathi, a gun, a this, a that, the camera is a weapon with which to protect. It does not shoot bullets, it shoots love into your heart. If you have never been into a forest and you go and see one of Kakubai's pictures, or you go and see some of these, when you skip through the book, you'll see it is possible to make people fall in love because this is a magnetic animal. And it's not only this, not only the tiger, everything. हमारे देश में कोई ऐसी चीज नहीं है. There was no dance, no religion, no thought, no philosophy, no nothing, no music, no nothing whose inspiration never came from the wild, from nature, कुदरत से. अगर हम अपनी इंस्पिरेशन को गायब होने दें तो कल बचेगा क्या? हम बच्चों को कहेंगे क्या? It's one of those things that I think each one of us has to think. Now मेरी भी उम्र हो गई ऐसी, कि मैं कहता हूं कि उदय भाई, एक तो ये इस जानवर का तो पॉलिटिक्स है नहीं, उसको पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट नहीं है. और दूसरी बात क्या है कि मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं. एक बच्चा पार्टी है और एक बुड्ढा पार्टी है. और मैं आज के दिन में अभी आई एम अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ द बुड्ढा पार्टी. सो आई कीप सेइंग टू माय फ्रेंड्स, टू माय ओन कंपेट्रियट्स ऑफ दिस, कि इफ यू आर अ फोटोग्राफर, use your images. If you are a writer, use your words. If you are a politician, use your influence. If you are a chai wala, use your chai and start talking to people. लेकिन किसी हालत में let us move away from this war we have declared on nature, क्योंकि जो कुदरत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. ये एक ऐसी चीज है. कमल भाई, थैंक यू वेरी मच. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. We want to see the book. We want to do all this British. It's been a very long journey for us, huh? And a very pleasurable one, I must say, with you. He has done so many things this man did for us when we were starting out our magazine, when we was running Illustrated Weekly. Lekin मैं ये कह सकता हूँ, Ashok, I'm telling you this clearly, we are at a very strange point. The pages of the book that you will see represents the heritage of India. जंगल नदी की माँ है. टाइगर पट्टेदार पानी का देवता है. आज के दिन में मौसम के बदलाव के कारण ऐसी चीजें होने वाली हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं कि all sectors of our development, of our desire to achieve will all go, whether we are looking at healthcare, whether we are looking at child welfare, whether we are looking at economics, whether we are looking at transport, whether we are looking at education. Everything is dependent on how do we treat nature, how do we go with nature's tide, क्योंकि जो कुदरत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. अगर हम इतना याद रखेंगे तो मेरा ख्याल है. और सबसे बढ़िया बात उद्धव जी ऐसी चीज है कि कुदरत की ऐसी गजब की चीज है कि जो हम उसको काटते भी जाए ना, जब हम काटते हैं उसी at that moment one butterfly is coming and planting a new tree. One bird is coming and planting a new seed. It is a self-repairing machine, just like when you get cut, your skin heals. The same way, nature heals itself. Dirty water, it will evaporate. When it comes down, you can drink it. ये जादू नहीं तो ये क्या है? और जंगल नदी की माँ है. जहां जहां जंगल है वहां वहां पानी है. जंगल को हम पूजते थे,
क्योंकि जंगल के बगैर जीवन नहीं था। आज के दिन में मैं कह रहा हूं कि ये जंगल जो है घटते जा रहे हैं। वी आर गेटिंग टू अ स्टेट वेयर आई डू नॉट नो हाउ आई विल फेस माई ग्रैंड चिल्ड्रन टुमारो व्हेन दे आस्क मी कि आप कुछ कर सकते थे तो आपने नहीं किया। तो मैं ये कहते हुए ये कहूंगा कि जो भी हो, हम लोग बीच बीच में झगड़ सकते हैं। कुदरत ने कभी हमें कोई जजमेंट नहीं देना है। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ नॉटी बॉय, यू आर अ गुड फेलो, यू आर, आपने अच्छा किया, आपने, देव नेचर विल नॉट गिव अस एनी जजमेंट्स, ओनली कॉन्सिक्वेंसेस। So if we do the right thing by nature, I think we are very, India is so blessed. We are so blessed. Maharashtra is not a state, it is a country compared to everything. We are so blessed. Please, the power in this room, let us use it. Kamal bhai has shown us how through a book. Each one of you has your own talent. कुछ करके दिखाएं. Thank you. इसीलिए मैंने कहा थोड़ा वार्तालाप कीजिए हमारे साथ. सध्या खूप जण येतात शिवसेनेत, त्याच्यामुळे वेगळा ऍड्रेस सांगण्याची गरज नाही, सबको पता है. आजकल थोड़ी सी मुश्किल होती है जब भी मैं हिंदी में बात करता हूं. मला वाटतं भरतजी, परवा तुम्ही पण होतात, भाषणाची किंवा बोलण्याची सुरुवात कशी करायची, क्योंकि एक तरीका होता है. पहले तो मैं कहता था भाइयों और नहीं तो मित्रों, भाइयों और बहनों नहीं तो मित्रों, लेकिन फिर देखा कि लोग भाग जाते. जितना टाइगर से नहीं डरते उतना आज के दिन इन दोनों शब्दों से डरते. जब भी ये शब्द सुनाई देते हैं लोग भाग जाते. तो मैं शुरू करते वक्त कहता हूं देवियों और सज्जनों, शायद ये अच्छा तरीका है शुरुआत करने. कमल जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन. अभिनंदन इसलिए क्योंकि सिर्फ बुक तो बहुत सारी पब्लिश होती रहती है. आज के दिन वाइल्ड लाइफ पर बुक करना एक बड़ी और अलग बात होती है. मैंने जब आपकी किताब देखी, सच कहता हूं थोड़ा जेलस तो हो गया. कुछ साल पहले मैं भी जाया करता था जंगल, फोटोग्राफी किया करता था. आजकल जरा कम हुआ है मेरा आने जाना. काकू भाई जी भी मेरे साथ कभी कभी आते थे. एक अलग अनुभव होता है जंगल में जाना, जंगल में वाघ देखना, बाकी सारे पशु पक्षी देखना और एक खुली हवा, अलग ही अनुभव होता है. अभी आपने बिट्टू जी कह रहे थे किसकी किसकी बात सुननी चाहिए, पॉलिटिशियन की, इसकी, और कौन किसकी और सुननी चाहिए था बोला. मैं तो कहता हूँ सिर्फ बच्चा पार्टी बुड्ढा पार्टी. नहीं, किसकी उसमें चाय वाली की भी सुननी चाहिए बात. आजकल उन्हीं की बात सुनाई देती, बाकी किसी की सुनाई नहीं देती. वाइल्ड लाइफ एक वर्ड है. पता नहीं क्यों जब भी कोई हम जानवर देखते हैं या जंगल में जाते हैं तो उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. वाइल्ड लाइफ तो असली अपने शहर में होता है. जब भी हम जंगल में जाते हैं, बहुत सारे लोग यहां आए हैं जो जंगल जाया करते हैं, फोटोग्राफी किया करते हैं. काकू भाई जी आप भी हैं, आप में से कोई भी जाता होगा. हम तो जाते रहते हैं, ऐसे जैसे रहते हैं. बिट्टू जी, आप तो आपकी पूरी लाइफ, बच्चे से लेकर बूढ़ा पार्टी तक आपकी लाइफ पूरी उसी में गई है. कभी आपने सुना है कि एक टाइग्रेस जा रही है और 2-4 अलग अलग टाइगर ने उसकी छेड़छाड़ की है? देखा ही नहीं. किसी और एक जानवर, लड़के उनमें भी रहती है, लेकिन कभी किसी की कोई छेड़छाड़ी नहीं करता जो अपने यहां होती है. और उसके बावजूद हम उनको वाइल्ड कहते हैं और हमें अपने आप को हम सिविलाइज कहते हैं. क्यों?
सीखना तो उनसे चाहिए हमें बहुत कुछ, और सचमुच तो बुक उन्होंने पब्लिश करनी चाहिए अपने ऊपर वाइल्ड लाइफ करके। उल्टा हो रहा है सब, तरक्की होती जा रही है। 4 दिन पहले हमारे यहाँ कलानगर जंक्शन पर मंत्री तो हमारे रामदास जी करम, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने एक मशीन का ओपनिंग किया। वो क्या करती है मशीन, सब पूरी पोल्यूटेड जो एयर रहती है वो खींच लेती है और अच्छी हवा हमें देती है। फिर हम क्या करेंगे एज ए पॉलिटिशियन, आज तो अभी चुनाव जाहिर हो गए हैं, हम कहेंगे आने वाले 5 साल में हम 10,000 ऐसे मशीन मुंबई में लगा देंगे। लगाओ, लगानी जरूर चाहिए, लेकिन नेचर ने हमें जो मशीन्स दी है, झाड़, वो क्यों काट रहे हैं आप? वो तो वही करते हैं, पोल्यूशन सब लेती है और खुली हवा देती है, अच्छी शुद्ध हवा देते हैं, वो तो काटना है। हमें विकास चाहिए। आरे में अभी कार शेड बनाने की बात हो रही है, वहां क्या वहां पेड़ नहीं है, झाड़ नहीं है? तो बिट्टू जी, टाइगर तो बचाना चाहिए, लेकिन टाइगर बचाने के लिए आप टाइगर को साथ नहीं दे रहे हो, बाकी सबको साथ दे रहे हो। ऐसे क्यों? हम तो टाइगर ही हैं, टाइगर की बात करते हैं। तो जब भी विकास की बात आती है तो हमें ये जल्दी करना है, जल्दी करना चाहिए। क्यों? विकास चाहिए, रास्ता बनाना है। अरे रास्ता बड़ा बन जाएगा, लेकिन जाएगा कहां? नहीं, मुझे डॉक्टर भट्टाचार्य जी के पास जाना है, जल्दी है, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। हॉस्पिटल जाना है, जल्दी जाना है। अरे जो बात है वो अगर हम उसको जैसे के वैसे रखें तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत लगेगी हमें। लेकिन बिना सोच से हम आगे जाते रहे हैं, पता नहीं आगे जाकर क्या करेंगे। अभी मोबाइल, आज ही मैंने वो पढ़ रहा हूं, मोबाइल से कितने रुग्ण बन गए। बरोबर ना? मोबाईल वापरून काय होतं, चिडचिड व्हायला होतं, कधी असं एक नैराश्य येतं, असं होतं, तसं होतं। तो मोबाइल का भी स्पीड, अभी पहिले तो मोबाइल था नहीं, मोबाइल आ गया। म्हणजे आता असं झालेलं आहे की मराठीमध्ये एक शब्द आहे बाईलवेडा, आता आलं मोबाईल वेडा। मोबाईल वेडा, आता मोबाईल वेड्याला काय करणार? बाईल वेड्याला तर आपण बोलू शकतो, मोबाईल वेड्याला काहीच बोलू शकत नाही। पण त्याच्यात सुद्धा आम्हाला स्पीड पाहिजे। मग आधी पहले काय होतं, एज, मग 2G, 3G, 4G, 5G, कितने जी, और इतना फास्ट जाकर जाएंगे कहा, करके जाएंगे कहा? तो मैं कहता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जंगल का भी अपना एक कानून होता है। कोई भी वहां तो सिर्फ शिकार होती है जब भूक लगे तो। वाघाकडे किंवा इतर प्राण्यांकडे असं काही रेफ्रिजरेटर नाही कि जिकडे आणून उद्या का होईल, परवा का होईल, पण जानवर मारकर उसमें फ्रिज में डंप कर दिए। क्यों? नहीं, 2-4 दिन के बाद देखेंगे, 5 दिन के बाद देखेंगे, ऐसे नहीं। जब भी जरूरत पड़ती तो ही वो शिकार करता है, उसके बावजूद, इसके अलावा नहीं करते। और हम है, जरूरत हो ना हो मारते जा रहे, जंगल साफ करते रहे। क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसका नतीजा क्या होगा? किसको भुगतना पड़ेगा? जो बात आपने कही वो सच है। आज हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो आगे जाकर हर एक की पीढ़ी हमें सवाल पूछेगा कि जब आप थे, अधिकार में थे, आप उस उम्र में थे, आपने क्यों नहीं हमारे लिए सब कुछ बचाया? क्या जवाब देंगे हम? क्या हमें जानवर या टाइगर से फोटोग्राफ में देखना चाहिए? टाइगर कैसे दिखता है? आणि म्हणून मी गेल्या काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये बोरिवलीला नॅशनल पार्कमध्ये टायगर सफारी केलं। कारण जर का आपल्या मुंबईतल्या लोकांना, मुलांना विचारलं की वाघ कुठे राहतो, ते म्हणतील पिंजऱ्यात। उन्होंने कभी जंगल में देखा नहीं है। आणि एक जो प्रयत्न आम्ही करतो की मुंबईच्या मुलांसाठी, हा काही पॉलिटिकल विषय नहीं है, पॉलिटिक्स की बात यहां मैं नहीं करने आया हूं, पेंगुइन की बात कर रहा हूं मैं। क्या हमें पेंगुइन यहां बच्चों को दिखाना नहीं चाहिए? और वो भी ऐसे पेंगुइन जिनके लिए वहां वो बर्फ बिरफ की आवश्यकता नहीं होती। एक तो लोकांना माहितीच नाहीये, आधे अधुरे नॉलेज पर कुछ भी बोलते हैं वो लोग। हे पेंग्विन कुठून आणलेत, काय आणलेत? उद्या हे मुलांसाठी खुलं झाल्यानंतर मुंबईतल्या मुलांना सुद्धा आणि संपूर्ण आपल्या देशातल्या मुलांना सुद्धा, जे तिथे जाऊन बघू शकत नाही, अशांना चांगल्या परिस्थितीमध्ये पेंग्विन जर का आपण दाखवले तर त्यांच्यामध्ये आणखीन त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होईल। लेकिन हम वो करने की किसी की इच्छा भी नहीं है। अगर कोई करना चाहता भी है तो उसको रोक कैसे लगे, यही हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। और इसीलिए मैंने कमल जी आपको धन्यवाद दिया, वो इसीलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में आप भी हो, मैं भी हूं, बिजनेसमैन आप हो, मैं नहीं हूं। और
इसके बावजूद आपने ऐसा विषय चुना है कि जिसके लिए शहर की जिंदगी छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है। आपकी बुक की तारीफ करूं तो क्या करूं? मैंने तो पहले कहा कि थोड़ी जेलसी तो हो गई, कारण त्याच्यामध्ये फोटो आहेत सायबेरियन क्रेनचे। लास्ट बैच था खत्म। कितने साल पहले की बात है? 98 तक आया। म्हणजे आता ते पक्षीच दिसत नाही, नामशेष झाले। आता ते फक्त कमलजींच्या पुस्तकात बघायचे। कोण ह्याला जबाबदार कोण आहे? हमें मालूम नहीं हमारे पास क्या है, काय काय वैभव ज्याला म्हणतं, हे असं वैभव आहे ह्याच्यावरती इन्कम टॅक्स चालत नाही, हे असं मोठं ऐश्वर्य आहे। आणि हे प्राणी सुद्धा असे आहेत, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिमोनिटाइजेशन करो ना करो, 100-500 किलो नोट मिले ना मिले, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी वो जी रहे, उनका लॉ अलग है। तर त्यांचा जो काही कायदा आहे त्याचा आदर करणं हे आपलं काम आहे। आणि तेवढं जरी आपण केलं आणि निदान आपल्याकडनं झाडे लावा, नका लावू झाड, सगळ्यांना जमेल असं नाही, पण कमीत कमी असलेली झाडं तोडू तरी नका, इतना भी अगर हम कर सके तो भी मैं मानता हूं कि बहुत कुछ हो गया। असो, जास्त काही बोलण्याची आवश्यकता नाही। प्रतीश जी, आप तो 1-2 महीने से पीछे पड़े थे कि आपके हाथों से बुक रिलीज करनी है। मी खरंच तुम्हाला धन्यवाद देतो की तुम्ही हा एक चांगली संधी मला दिली, आणि उगाचच काहीतरी सांगायचं म्हणून नाही, पण खरंच थोडीशी एक वेळेची ओढाताण होते। आज तर इलेक्शन जाहीरच झालेले आहेत, पण तरी सुद्धा तुम्ही घाई गर्दी न करता आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे नाराज न होता, कमल जी आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आप भी नाराज नहीं हुए, 1 महिना माझ्यासाठी थांबले, त्याच्यासाठी खरंच मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो। आणि हे थांबणं केवळ तुमचं माझ्यावरती असलेल्या प्रेमापोटी, तर हे प्रेम असंच कायम असू द्या। बिट्टू जी, मेरे ओर से जितना कुछ मैं कर सकूं वो आप मुझसे करवा लेना, टाइगर के लिए हो, जंगल के लिए हो, जो भी करना चाहते और मैं कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप सभी को मैं यही कहूंगा की जी काही थोडी थोडी लोक याच्यात पुढाकार घेत आहेत त्यांच्यासाठी आपण प्रत्यक्षात जंगलात जरी जाऊ शकलो नाही तरी आपल्याकडनं जे काही करता येईल ते करूया, आणि आपले हे जे काही वैभव आहे, जे निसर्गाने आपल्याला देणं दिलेलं आहे, ते असंच टिकूया, पुढच्या पिढीच्या हातामध्ये ते देऊया। सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Bittu has made an urgent plea, which all of us need to seriously think about. This book that Kamalji has done is not really a book. It is a testament to our love, our respect for what we are slowly losing. And it is our job to use this opportunity and every opportunity to protect the most valuable of our natural resources, which in this case means the jungle, the tiger, wildlife, everything. Uddhav ji's offer to Bittu, I think, is an offer we all will take up, because we all will go to him with all our problems on this front, because the problems on this front are enormous, they're increasing, and they're truly speaking, in fact, global. It is important for all of us to re-educate ourselves and future generations on how to deal with nature. Nature is not our enemy. Every few days we read about wildlife being beaten to death by villagers in the neighborhood. Every day we read about rivers being covered up. Every day we read about loss of trees, loss of forests. This book is yet one more small but important attempt at protecting what we must all protect. Thank you, Uddhav ji, for being here today. Thank you, Bittu. And thank you, Kamal, for
doing this work. Thank you. Join us for